One go बोल देना. Hi guys, so yesterday we had a Google Meet regarding the DGS mains examination. तो उस Google Meet में around 120-130 odd students थे. And in order to ensure that you guys do not know who your competitors are, मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है Google Meet का, वो वीडियो आप इस वीडियो के बाद देख पाएंगे, लेकिन उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट्स को रिवील किया गया है और साथ ही साथ में उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मैंने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की है एंड अलॉन्ग विद दैट अ फ्यू स्टूडेंट्स क्वेरीज जिसको मैंने की आंसर किया उस पर्टिकुलर वीडियो में. सो जाओ जा करके बढ़िया वीडियो देखो और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना हाउ वाज द वीडियो. गुड लक. We can start with this discussion. हाँ प्रीति, जो भी दुख है यहाँ पे लिख सकते हो आप. Please, you can write that down. If it is okay, can you guys open your cameras, please? Please camera open कर दीजिए क्योंकि it's not very good to talk to blank like initials. A B C D से बात कब तक कर पाऊंगा? Please cameras open कर लीजिए. If it is okay with you guys, even if it is not okay with you guys, get to a good background. जैसे आप लोग देख रहे होंगे मेरा कोई खास बहुत अच्छा बैकग्राउंड है भी नहीं. So we are not here to show off anything. Fair enough. ठीक. चलिए please open your cameras. That will be great. Reason being, I wish to talk to you guys like one to one ढंग से and please keep a notebook with yourself. जो जो चीजें मैं बोलूंगा उसके अराउंड ही आपको अपना पूरा मेंस का जो प्रिपरेशन है वो रखना है. ठीक है. And while I'll be telling that to you, I will be referring each and everything from one of the RTI copies of mains examination. ठीक है. I will be referring to each and everything from the RTI copy of mains examination. I believe he was rank 28 or something. I'm not sure. अभी मुझे रैंक नहीं पता. तो रैंक और नाम क्योंकि मुझे रिवील करने से भी मना किया गया, तो I won't be revealing any names and ranks. But yeah, it's a selected student and High Court of Delhi. It's a mains copy specifically. So I'll be referring to that. Do make sure that you make notes around that. Okay. सबसे पहले एक दो चीजें एड्रेस कर देता हूं because that is important. Fair enough. Those who cannot open their cameras, it's completely fine. देख लो सबसे पहले कि जितने भी लोगों को कट ऑफ रिलेटेड क्वेरी है, all those who are thinking कि what would be the cut off or what probably can the cut off be, the cut off guys is not going to be low. I'm being very honest with you guys. It is not going to be low. May you have attempted 130 questions or 140 questions or 150, 160, 200 questions. That doesn't matter. The cutoff is not going to be low at any given day. Reason being, I can sugarcoat things for you, but it's not fair. ठीक है. So the cutoff can be high. जो मुझे कल भी लग रहा था 135 plus is any given day possible because half से भी कम vacancies हैं, 40-45%. We'll just take like 5 minutes to address this point beforehand. पहले ही address कर देते हैं ताकि आपके mind में सारी चीजें clear रहें. And there are no false promises as well. कोई false promise आपको नहीं मिल जाएगा. So first cutoff would be high. 135 plus मुझे कल तक लग रहा था. Today जैसा पोल्स मैं देख रहा हूं, हालांकि दूसरे चैनल्स पे और दूसरे हैंडल्स पे मैंने चेक किया, बट आई गॉट दिस आइडिया कि सबसे ज्यादा पोल्स अपने आप ही आए हैं और कहीं पे किसी ने उतने ज्यादा पोल्स डीजेएस के लिए तो नहीं किए हैं. दैट्स फॉर श्योर. सो वन थिंग दैट आई कैन मेक आउट ऑफ दैट इज इट्स गोइंग टू बी अराउंड 140. इवन ऊपर जा सकता है. एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट. अगर उसके नीचे जाता है तो वो आपकी किस्मत है. ठीक. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे कम जाने का कोई रीजन नहीं है. देयर इज नो रीजन व्हाई द कट ऑफ वुड गो लेसर देन 140. ओके. बट 135 के ऊपर अगर आप हो तो आई थिंक यू शुड बी स्टार्टिंग टू प्रिपेयर. 128 या 130 या पिछले कट ऑफ के बेसिस पे अगर आप खुद को जज कर रहे हो तो डू नॉट जज दैट. द पेपर वाज इजी इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर पेपर. ये आप लोगों को मालूम है. I believe I'm not making this up. You guys would agree. At least you can nod. If you can nod, I can understand that. Yes, fair enough. Above 150, yes. अगर आपके 150 plus है तो you should start preparing immediately. तब तो खैर कोई बात ही चीत नहीं है. लेकिन there's one thing that I discussed in today's live session as well, and I'll address this once again. There's always a margin of error. Even if a student has, let's say, attempted 180 questions or 185 questions or 190 questions, there's a very good possibility that the student might score on a lesser side because there is a margin of like 15%, 15 to 20% का मार्जिन आपको लेके चलना पड़ता है. आपको लगता है कि आपके 3 सवाल गलत हैं, 4 गलत हैं, 5 गलत हैं,
लेकिन ना इट्स नॉट ईशान, अभी तक ऑफिशियल की नहीं आई है. There's no official key as of now. So once you get the official key, you can deliberately like you can actually calculate your scores. But as of now, जो मुझे नंबर लग रहा है वो 135 प्लस तो एनी गिवन डे है. 145 से ज्यादा जाएगा, ये मेरी गट फीलिंग है. हो सकता है और ज्यादा चला जाए, वो किस्मत पे डिपेंड करता है आप लोगों की. Yes, you should. मैं should I prepare for shift? नहीं, मैं अजय, that's what I'm saying. Do not message सेपरेटली, क्योंकि मैं एक एक मैसेज अगर देखने जाऊंगा, एक एक मैसेज को एड्रेस करूंगा, इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू गाइस एंड फॉर मी एज वेल. सो डू नॉट सेपरेटली मैसेज मत करो प्लीज. ठीक, ओके, चलो. सो वेदर और नॉट यू हैव टू शिफ्ट टू एमपीसीजे, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. अगर आपके 130 से भी कम आ रहे हैं, 130, 35 उससे अगर आपका नीचे आ रहा है, यू कैन शिफ्ट योर गेयर्स टू एमपीसीजे. नंबर 1. Am I clear? Just nod if I'm clear. Fair enough. Number 2, MPCJ, MP High Court के सामने eligibility pending है. Okay? So even if like you are at 67%, 68%, 69%, we are hopeful about everything. But for that date, it's 14th of January. जब तक कोई change नहीं आ रहा है. You are eligible. You have filled the form, and the examination is at 14th of January, and there's no question about that. Be clear on that thing. It's non-negotiable. 2, 3. अगर आप 135 के ऊपर हो तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप 135 के ऊपर हो, you should start preparing for mains examination, because that would mean if you are above 135 plus, you are already well prepared for MPCJ preliminary examinations. ठीक? If you are 135 plus, your prelims के लिए तुम लोग prepared हो, तुम लोग prelims में weak तो नहीं हो. That's I can guarantee. जहां तक बात रही एमपी एलआरसी की या छोटे छोटे ट्वीकिंग सब्जेक्ट्स की, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल की, दैट कैन बी कवर्ड. डू नॉट लाइक क्राई अबाउट दैट. ओके, वन मोर थिंग, आई विल अवॉइड यूजिंग एनी कर्स वर्ड्स, बट मेरी टीम तो रिकॉर्ड कर रही है तो उसको एडिट कर देगी. बट इन केस, जस्ट इन केस आई यूज एनी काइंड ऑफ कर्स वर्ड, बिकॉज दैट कम्स इन द फ्लो, आई एम सॉरी अबाउट दैट in like way before I even say them. ठीक, but I'll try not to use them. So ये चीज आपकी एड्रेस हो गई है. सारे पॉइंट्स मैंने कट ऑफ बता दिया, किसको कितना प्रिपेयर करना है. अगर आपके 1 तारीख 2 तारीख के बाद मान लो कि कोई चेंज नहीं होता है, 14 तारीख का आप लोग पेपर दे रहे हो, एमपीसीजे का प्रीलिम्स, इवन इफ यू आर राइटिंग इट, यू कैन प्रिपेयर फॉर इट फ्रॉम 2nd of January. 2nd January से प्री पे लग जाना, अभी मेंस के लिए प्रिपेयर करो. ठीक है, आई बिलीव आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर ऑन दिस पॉइंट. अब ये हो गया, यहाँ पे हमारा कॉन्वर्सेशन खत्म. किसी को अब तो कोई डाउट नहीं है ना? और किसी को कोई डाउट नहीं है एमपी के लिए प्रिपेयर करूं नहीं करूं? थम्स अप दे दो बस, जस्ट गिव मी थम्स अप एंड वी विल मूव अहेड. थम्स अप है, सॉर्टेड. ठीक, अब सीधे सीधे आ जाते हैं. आप लोगों के पास 2 चीजें होनी चाहिए. पहला, आपके पास डीजेएस का सिलेबस होना चाहिए. डू यू गाइस हैव इट हैंडी? डू यू गाइस, यू शुड हैव अ सेपरेट डिवाइस और ओपन द सिलेबस एनीवेयर यू गेट. बहुत सारे गूगल के वेबसाइट पे, बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगा. लॉकटोपस पे भी मिल जाएगा. मैंने लॉकटोपस पे ओपन किया. यू कैन ओपन इट ऑन लॉकटोपस एज वेल. सो नाउ लेट मी एड्रेस दिस वन बाय वन. नंबर 1 थिंग जो कि मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, योर हैंड राइटिंग मैटर्स व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग. याद है? फेयर इनफ, फेयर इनफ. ठीक है, मैसेज मत कर, याद है तो मन में रख. ठीक है, बोल मत. ठीक. सो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, योर पेपर 1 is general knowledge and current affairs and current legal affairs. Mostly जो लास्ट मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, लास्ट ईयर का जो ये आंसर की है, आंसर शीट है जो कि आरटीआई से आई है, इसमें एक आंसर लिखा गया है हिजाब पे, एक आंसर लिखा गया है स्प्लिट वर्डिंग मैरिटल रेप पे, और एक आंसर लिखा गया है ऑन आफ्स्पा 1958 एंड इट्स इफेक्ट. ठीक. उसके बाद देन अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आते हैं. अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ. यू ऑल्सो गेट अ ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन in your mains examination, but you have to give a reason for that. So if you give a true or false, just a true or false, it will provide you like 0.25 marks or whatever the marking भी, उसका half ही मिलेगा आपको, पूरा नहीं मिलेगा. You have to give a reason for all the true and false. Apart from that, next चीज जो मुझे दिख रही है regarding the Delhi Municipal Corporation bill or all of these things, एक चीज समझ लो, जो आपका जनरल नॉलेज है या करंट अफेयर्स है या current legal knowledge hai, that will mostly be based upon any kind of new acts, legislation. You can write this down if you want to. It will be around any kind of legislation. It will be around any kind of controversial judgment. It will be even around constitutional validity of any legislation or a statute.
So note it down somewhere. Any controversial judgment, any split verdict और any constitutional validity. तीनों का मैं एग्जांपल दे देता हूं. एक सुप्रीयो का केस है, एक आपका डिमोनेटाइजेशन का केस है और एक जनहित अभियान का केस है. These three are the cases which are of prime importance for you guys. ठीक, ये सिर्फ एक मैं स्लैब बता रहा हूं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज और, जितने भी मेरे से वो केसेस शेयर किए गए हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाए जा रहे हैं इन द अकेडमी, जो डीजेएस के स्टूडेंट्स को, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को जो केसेस पढ़ाए जा रहे हैं, उनके लिए यूट्यूब पे आई विल कम अप विद अ केस स्टडी बेस्ड पूरा सिस्टम. केस स्टडी की डायरेक्ट क्वेश्चंस को यू कैन आंसर. इफ यू आर अपीयरिंग फॉर दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, आई कैन मेक दिस अप दैट यू कैन आंसर डायरेक्ट क्वेश्चंस. सो जितने भी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस वाला पॉइंट आता है या जो फैक्चुअल क्वेश्चन वाला पॉइंट है, उसके लिए व्हेन आई टॉक्ड टू लाइक 3-4 months back, even when I talked to Sukriti and even when I talked to Divya on this and other students as well, even Tanmay as well, he also told me कि सर जो factual questions हैं वो mostly recent judgments के ही facts पूछे जाते हैं. So recent judgment based, जैसे कि रजनेश वर्सेस नेहा का एक केस है 125 CRPC पे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. एक विद्या ब्रोलिया का केस है आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन का. अपार्ट फ्रॉम दैट टाटा एंड सन्स का एक केस है. सो इनके ना सिर्फ आपको रेशियो पता होने चाहिए, यू शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट देयर फैक्ट्स की भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी. सो आपको केस स्टडी बेस्ड पूरा प्रिपरेशन रखना है. दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. नंबर 2, जो मुझे आरटीआई से जितनी भी कॉपीज मुझे दी गई, मेरे स्टूडेंट्स ने प्रोवाइड की, one thing is common in all of them, handwriting won't matter much. तुम्हारी हैंडराइटिंग अगर बहुत ज्यादा खराब भी है बट नॉर्मली लेजिबल है, इट विल वर्क फॉर यू. ठीक, सो यू नीड नॉट वर्क ऑन योर हैंडराइटिंग इन नेक्स्ट 1 month. आपको हैंडराइटिंग पे वर्क करने की जरूरत नहीं है. इफ यू हैव वर्कड वेल ऑन योर कंटेंट, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. ठीक, सो ट्रू फॉर बेस्ड क्वेश्चन हो गए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए. कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं who could not crack the mains examination last year. ठीक है, how recent cases? past 2-3 years specifically. मैं ये जब अभी स्प्लिट करके बताऊंगा तो वो मैं समझा भी दूंगा. You have to cover the subjects in 2 heads. You can divide the subjects in 2 heads that you have to prepare for the DGS mains examination. Okay, divide it into 2 heads. आप चाहे तो ऐसे subjects 1 and 2, ये ऐसे करके डिवाइड कर लो. सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2. सो सब्जेक्ट 1 विल बी योर प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू कंप्लीट इमीडिएटली. फेयर एनफ. सब्जेक्ट 1 आपका जो पूरा सेक्शन पेपर 2 सिविल लॉ, पेपर 3 सिविल लॉ, पेपर 4 क्रिमिनल लॉ है, उसके ही सब्जेक्ट्स में बता रहा हूं, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे बता दे रहा हूं कि कौन से आपको पहले कवर कर लेना है. ठीक, जहां पे आपको चैलेंज फेस करना पड़ सकता है. नंबर 1 वुड बी ऑल योर मेजर सब्जेक्ट्स. वो तो आपको करनी है. सारे मैं नाम बता देता हूं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपीए, एसआरए, सीपीसी, एविडेंस, लिमिटेशन, along with that IPC, CRPC and evidence. Now all the subjects that I have named right now, these are the subjects in पे अगर factual question भी बनता है, can you guys handle that? Just give me thumbs up. Yes, ठीक है, you guys can handle that. इन पे अगर factual question बनेगा आप लोग handle कर लोगे, that's possible. But just in case इनके अलावा जो subjects हैं, अब मैं बता देता हूं वो वाले सब्जेक्ट्स. निकी, आई कैन नॉट रिपीट इट बेटा, somebody will note it down and minutes of the meeting बना करके ग्रुप पे डाल देना. टेलीग्राम का जो हैंडल है उस पे प्लीज डाल दीजिएगा. आई विल नॉट बी एबल टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन. ठीक है, सॉरी बेटा. सो दैट विल बी वन थिंग, नंबर 1. नंबर 2, जो मुझे स्पेसिफिकली पता चला है कि यहां से फैक्चुअल क्वेश्चंस बनने की चांसेस ज्यादा है, एंड दिस इज फ्रॉम द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एज वेल एज सर्टेन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स. ठीक, दे आर डूएबल. नंबर 1, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ. हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, यहां से फैक्चुअल क्वेश्चंस बनने की चांसेस हैं. नंबर 1. नंबर 2, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, ये दिस इज अनस्पोकन लॉ, वहां से बनेगा. नंबर 3 इज ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट. लाइक मान के चलो कि ट्रेडमार्क कॉपीराइट पे फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा एंड इट विल बी वेरी रीसेंट पर्टेनिंग टू द दिल्ली हाई कोर्ट्स डिसीजन. इट कैन बी एनी डिसीजन, बट दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजंस ढंग से देख लेना ऑन आईपीआर, स्पेसिफिकली ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट. सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी रेलेवेंट. अदर देन दैट, बिकॉज इन द रीसेंट टाइम्स ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, 2 लॉज, योर जेजे एंड योर
डू वी हैव अ डीवी? नहीं, डीवी तो है। पॉक्सो है क्या अपना? पॉक्सो नहीं है ना शायद यहाँ पे। पॉक्सो नहीं है, पॉक्सो प्रीलिम्स में था। इट विल बी जेजे। अदर देन दैट इट विल बी पॉश, जेजे एंड पॉश। इन दोनों पे भी आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक। हाउ मेनी केस लॉज शुड वी ऐड इन अ क्वेश्चन? अगर कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से तुम्हें पता होना चाहिए, अगर कोई भी क्वेश्चन किसी केस लॉ पे ही बेस्ड आया है तो the entire question has to revolve around only one case law. Do not go beyond that. एक चाहो तो extra case, supporting case लिख सकते हो, दो case sufficient है. But if let's say a question is direct in nature, you can go up to 2 to 3 cases. क्योंकि DGS है and the value that the judgments hold will be in the ratio of 1:2. 1:2 would mean, जो मुझे बताया गया है, 1 would be landmark judgment and 2 recent judgments. That is how you get more chance of cracking a merit. मतलब आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप सिलेक्ट हो जाओगे, आई एम टेलिंग कि अगर आपको टॉप 5 स्टूडेंट्स में आना है, डीजेएस रैंक 1 2 3 4 5 में आना है, तो यू हैव टू हैव अ रेशियो ऑफ 1:2, 1 लैंडमार्क एंड 2 करेंट. लेट्स से इफ यू डू नॉट हैव 2 करेंट, 1 लैंडमार्क एंड एटलीस्ट 1 करेंट जजमेंट, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. ये दो हो गए. अब इसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं जिसपे मैंने डिस्कशन किया है, जो अभी करंट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स हैं, आज मेरी उनसे मीटिंग थी. 8 बजे भी मीटिंग थी और एक तो खैर 7 बजे थी जो नहीं हो पाई बिकॉज लाइव था. बट 8 बजे वाली मीटिंग में आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट विद देम. बट देयर विल बी फॉर एनडीएमसी एंड डीएमसी, आई हैव बीन टोल्ड दैट एनडीएमसी डीएमसी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आता है. मतलब आपके पास एक ऑप्शन होता है, यू मे अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस और यू मे नॉट अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. ठीक. सो पर्टेनिंग टू दीज सब्जेक्ट्स बीइंग लोकल लॉज, ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ये बहुत बड़े हैं. दीज आर ह्यूज सब्जेक्ट्स. सो एक चीज आप लोग बस कर लो, यू कैन होल्ड ऑन टू दीज सब्जेक्ट्स फॉर लाइक फर्स्ट 7 days. पहले 7 दिन तक होल्ड ऑन कर लो इन सब्जेक्ट्स पे, क्योंकि ये ऑप्शनल है, आप इनको स्किप कर पाओगे. What I'll do by that time is I will provide you a list of significant sections which are being practiced in the Delhi courts, जिनको रिकरिंगली, जिन पे डिस्प्यूट बनता है. यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? आपको क्वेश्चन बनने की चांसेस उस सेक्शन पे, उस प्रोविजन पे ज्यादा होगी जिस प्रोविजन पे केसेस होते हैं या जिन पे ज्यादा केसेस होते हैं. भाविक समझा दे रहा हूं. इन प्रैक्टिस भाविक, डीजेएस में जो भी सेक्शन नंबर ज्यादा रिकरिंगली आएंगे एनडीएमसी के मामलों में, एनडीएमसी भाई 400 सेक्शन है मान लो फॉर एग्जांपल, तो 400 में से 10 ऐसे सेक्शन होंगे जिसके मामले रिकरिंगली आएंगे. अब वो ऑफेंस रिलेटेड हो सकते हैं या जो भी क्राइटेरिया, पेनाल्टी रिलेटेड, तो वो रिकरिंग मामले कहलाते हैं. अब ये रिकरिंग मामलों की मैं एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि एनडीएमसी और डीएमसी, इनमें ये प्रोविजंस हैं विच यू हैव टू गो थ्रू. यू हैव टू बाय हार्ट देम, मग अप देम. सिंपल. गॉट द पॉइंट भाविक? समझ में आ गया? थम्स अप दे दे. ये पॉइंट है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. सो एनडीएमसी डीएमसी को होल्ड कर लो. डू नॉट रश ऑन दीज 2 सब्जेक्ट्स. नंबर 1, इसका मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा. बी क्लियर ऑन दैट पॉइंट. अनदर सब्जेक्ट जो हमसे स्किप हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में भी फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीसेंट केसेस बहुत सारे वैसे भी आए हैं. नंबर 1. नंबर 2, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इतना डिफिकल्ट है कि वो आपका, मतलब इट कैन बी अ नाइटमेयर, टोटल नाइटमेयर. सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, स्पेशली चैप्टर 17 हैज टू बी प्रिपेयर्ड वेल, एंड एवरीथिंग रिलेटिंग टू नोटिस एंड प्रोटेस्ट, सेक्शन नंबर 99 एंड सेक्शन नंबर 100. सोगा और रजिस्ट्रेशन को मैं एड्रेस कर रहा हूं भाविक, एड्रेस कर रहा हूं. 99, 100 नोटिस प्रोटेस्ट, अलॉन्ग विद दैट द प्रिजम्पशन. ये जो 3 सेक्शंस हैं, इन तीनों सेक्शंस को आप जब एनआईए का आंसर लिखो अपने मेंस एग्जामिनेशन में, यू हैव टू यूज दीज सेक्शंस इन दैट पर्टिकुलर केस. अगर आप कोई केस एड्रेस कर रहे हो या अगर कोई फैक्चुअल सिनेरियो एड्रेस कर रहे हो, तो उनको, उन सेक्शंस को, नोटिंग को, प्रोटेस्ट को और प्रिजम्पशन को कोट भर कर देना. वो हाईलाइट कर देंगे आपके आंसर को. ठीक. देयर इज अ वेरी long message I can see. Mega, it means NDMC DMC we must focus only. Yes, you cannot cover the entire thing. ठीक है, you cannot cover the entire thing. So मत जाओ, उसका रिस्क मत लो, क्योंकि पूरा अगर आप पढ़ने या मगअप करने जाओगे नहीं प्रिपेयर हो पाएगा. ठीक. सो ये आपको सब्जेक्ट्स तुरंत रखने हैं. 90% चांस यही होती है दीपांशी, दैट रीसेंट केसेस से ही आपके फैक्चुअल सिनेरियोस बनते हैं, तो रीसेंट केसेस ही ढंग से आप प्रिपेयर कर लो. अब क्योंकि इन जनरल अगर आप डिस्कस करोगे तो आर वर्सेस गोविंदा सबको पता होता है. ठीक. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक जो एरिया अभी भी मेरे से मिस हो गया वो था लॉ ऑफ टॉट्स.
लॉ ऑफ टॉर्ट से भी आपके बहुत सारे केसेस की चांसेस हैं, मतलब इवन इफ यू डू नॉट हैव द केसेस, यू विल हैव द प्रिविलेज ऑफ मेंशनिंग दोस केसेस इन योर पेपर। क्योंकि आपको अगर मान लो कि आपको आ गया ये क्या बोलते हैं इसका, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस पे अगर क्वेश्चन आता है, तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस पे यू नीड टू कोट सर्टेन केसेस, या रायलैंड वर्सेस फ्लेचर बेस्ड अगर कोई केस आता है, या फिर और कोई दुर्गावती का केस आता है, ये जितने भी केसेस हैं, यू हैव टू एड्रेस दीज केसेस इंपॉर्टेंटली। तो टॉट्स तो आई डू नॉट थिंक यू नीड टू सेपरेटली प्रिपेयर, बट हाँ थोड़ा बहुत एक एक टॉपिक को केस वाइज लिख लेना। ठीक प्रियांशु, मैं एड्रेस कर चुका हूं बेटा, यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस। ठीक, ये पूरा का पूरा एरिया है। अब बात करते हैं रिगार्डिंग दोज लॉज जिन पे कोई भी फैक्चुअल सिनेरियो के क्वेश्चन आने की चांसेस नहीं है या ना के बराबर है। नंबर 1 वुड बी योर दिस, एक सेकेंड कहां गया, दिल्ली रैंक कंट्रोल। बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पे डीआरसी पे आपके क्वेश्चंस फैक्चुअल बेसिस पे आए। ठीक, आ सकते हैं इलस्ट्रेशन बेसिस पे आ सकते हैं, बट एक्चुअल पूरा फैक्चुअल बेसिस पे आने की चांसेस कम है। ठीक, आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। नंबर 2 एनडीएमसी डीएमसी कम चांसेस हैं। कमर्शियल कोर्ट्स पे अगेन देयर आर चांसेस कि फैक्चुअल बनेगा वहां से। देन लिमिटेशन रजिस्ट्रेशन, इन दोनों के अगर बारे में बात करूं तो लिमिटेशन रजिस्ट्रेशन से देयर इज अ वेरी लेस चांस दैट यू माइट गेट एनी फैक्चुअल क्वेश्चन, कम चांसेस रहेंगी। तो यहां के क्वेश्चंस को आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, इसके अलावा होल्ड ऑन अ बिट। एक पॉइंट जो मैंने एड्रेस नहीं किया उसको मैं अभी कर दे रहा हूं, लैंग्वेज का जो पेपर होगा उसमें जो ट्रांसलेशन होगा, ठीक, डू वी आर वी गिवन द क्राइटेरियन ऑफ लीगल ट्रांसलेशन ओवर देयर? नो ना? ओके, I'll read the translation and you can like make it out for yourself whether this is legal or not. ठीक है? हाँ यश मैं बता रहा हूं, एक सेकंड सुन ले। देखो जो ट्रांसलेशन लास्ट हिंदी का ट्रांसलेशन है, पढ़ के बता रहा हूं। कई कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों को अपने आप से बचाया जा सके। इसके कुछ उदाहरण हैं, वाहनों का आयु के हिसाब से नियंत्रण, ठीक है, गाड़ियों में सीट बेल्ट पहनने का नियम, मोटर बाइक चलाने के लिए हेलमेट पहनने का नियम। ठीक, अब ये जो छोटे छोटे से एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, ये आपके सोशो लीगल एंगल से जाएंगे, लीगल नहीं है, दिस इज नॉट लीगल, यू कैन नॉट कॉल इट प्योरली लीगल। प्योरली लीगल वो होता है जो एमपीसीजे में आप लोग देखते हो कि एज इट इज स्पेसिफिक लीगल रहता है, बट यू कैन से दैट दिस इज क्वाजी लीगल और सोशो लीगल। सोशो लीगल का आपको डेफिनेटली चांस है कि बन सकते हैं क्वेश्चंस। तो सोशो लीगल ट्रांसलेशन के लिए माइंड में ऐसे लेकर के मत जाना कि यूपी का ट्रांसलेशन आपको आएगा, यूपी का ट्रांसलेशन इज टोटली हिंदी बेस्ड। ठीक, समझ में आया? इट्स अ डुएबल ट्रांसलेशन, आई एम जस्ट सेइंग कि परसेप्शन मत प्रिपेयर कर लेना कि सोशल लीगल भी नहीं होगा। विधि के शब्द जितने आप इस्तेमाल कर पाएंगे उतना ही आपके लिए एक एडेड बेनिफिट होने वाला है। ठीक, बी क्लियर ऑन दैट पॉइंट। तो ये ट्रांसलेशन में आपको हेल्पफुल हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंग्लिश के टर्म्स आते हैं वो आप लोग कर लेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अगेन 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 ट्रिपल तलाक पे मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चंस हैं। एक जो आप लोगों का डाउट रहता है कि क्या अगर डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हमें कॉलम बनाना है, ठीक, या हमें पैराग्राफ्स में लिखना है, तो आप लोग कॉलम्स में लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि मेरिट के स्टूडेंट की आंसर शीट है तो यू कैन बी लाइक वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, नो प्रॉब्लम विद दैट। अदर देन दैट एक जो चीज मुझे भी बार बार बोली गई है रिगार्डिंग दिस होल थिंग, इसमें आपका स्पीड बहुत टेस्ट होगा। आप लोगों को कल से स्टार्ट करना है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू राइट फ्रॉम टुमारो, एटलीस्ट राइट 10 पेजेस डेली, मिनिमम, मिनिमम बोल रहा हूं 10। अगर आप वही है कि अगर आप 140 या उसके ऊपर जा रहे हो तो 10 आपको हो सकता है सुनने में लग रहा हो, 10 पेजेस को टाइमर पे लिखने की कोशिश करो, क्योंकि जब से तुम लोगों ने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू की होगी तुम्हारी राइटिंग हैबिट छूटी हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में राइटिंग हैबिट छूटती है। यस, थम्स अप दे दो भाई इफ यू अग्री, है ना? वो तो सही बोल रहे हैं, राइटिंग हैबिट आप लोगों की छूटी हुई है, गारंटीड है। तो आपको राइटिंग हैबिट वापस से रिकवर करनी पड़ेगी। नाउ एज फार एज आई नो बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी राइटिंग हैबिट बनी होती है,
ठीक, margin of 137 you should prepare for it. Okay, मार्किंग वाइज पेजेस टू बी रिटन, यस। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, मैं डीजेएस के पेपर की जुगाड़ कर लेता हूं, आप में से है क्या किसी के पास डीजेएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं? मान्या, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, अगर आपको ऐसा ना लगे कि मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा, जो कि डेफिनेटली बढ़ जाएगा, ठीक, अगर ऐसा ना हो तो प्लीज शेयर कर देना टेलीग्राम पे। अगर नहीं लग रहा है, नहीं शेयर करोगे तो इन लोगों की शक्लें देख लो, इनसे दोबारा नहीं मिलना है लाइफ में, क्योंकि जहां मिलोगी वहीं पे ये कूट सकते हैं। ठीक है, ये कोई अच्छी जनता नहीं है। फेयर इनफ। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को आप देख लेना, डीजीएस का जो प्रीवियस मेंस पेपर है उसको आप लोग देख लेना। एक निशान ने क्या पूछा, सर प्लीज इलैबोरेट ऑन दिस मोर, हाउ मच टाइम, हाउ टू मेंटेन स्पीड। देखो, आई वुड रिकमेंड दैट इफ यू आर राइटिंग एन A4 साइज पेज, ठीक है, अगर आप A4 साइज पेज पे आंसर लिख रहे हो, ओके, you should have a speed of like 1 2 3 4 minutes, 3.5 4 minutes per page। अब ये ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये लिखना पड़ेगा। ऐसे सुनने में ये बहुत हैवी लगता है, बट डूएबल है, इट्स डूएबल वंस यू स्टार्ट राइटिंग इट। लाइक आई सेड, द राइटिंग स्पीड इज द इशू, द हैंड राइटिंग इज नॉट द इशू। यस, यू हैव लिमिटेड स्पेस, रूल शीट है आपकी, रूल शीट होती है ये, दीज आर रूल शीट, दीज आर A4 साइज शीट्स, जिसमें आपको मतलब कुछ, अब यार ऐसे समझ लो, यहीं पे बना के ये, इसको यहां से इतना स्पेस मिलता है आपको, इतना, गेट दिस मच पेज, ठीक। सो A4 ये A4 में भी मार्जिन 1-1 इंच का साइड से कम कर लो, उतना ही पेज रहता है। सो यू कैन राइट एट अ वेरी गुड फ्लो। ऐसा नहीं है कि अब इतना आंसर लिखने में आपको 3 मिनट 3.5 मिनट हार्डली लगना चाहिए। ईशान, आई बिलीव यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया ना। सो इफ यू आर राइटिंग 10 पेजेस, यू शुड लाइक टेक ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स, 30-35 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। 35 मिनट में लिखना है 10 पेज। ये अभी पॉसिबल नहीं है, राइट, टुडे इट्स नॉट पॉसिबल। इट शुड बी पॉसिबल बाय द टाइम यू राइट द मेंस एग्जामिनेशन। एम आई क्लियर? जस्ट गिव मी थम्स अप ऑन दिस। ठीक, थोड़ा सा तुम लोग देखो, बोल तो सकते नहीं हो, कुछ रिएक्शन देते रहो, ताकि मैं ब्लैंक चेहरों से बात ना करूं। मैं कहां से कितनी फेक एनर्जी लेकर के मैं आ जाऊंगा। हाँ, यश का मुझे आधा चेहरा दिख रहा है, आधा, यश अरोड़ा का इतना चेहरा दिख रहा है, अब वो पीछे हो गया है, जस्ट टू गिव मी अ लेवरेज कि हाँ सर पूरा चेहरा देख लो। तुम लोग हंस सकते हो, यू गाइस कैन लाफ, यू गाइस कैन स्माइल, तुम्हारा प्रीलिम्स हो गया, अच्छा गया है, तो थोड़ा सा हाँ एनर्जी बना के रखो। टीचर को ही ना मार दो ना भाई, कि वही इंटरेस्ट लूज कर जाए अपना। बढ़िया है, साला फोकट की मीटिंग करने आए हैं। क्यूआर कोड भी डाल देना, मेरी टीम से बोला क्यूआर कोड है, साला बाहर निकले ना तो 50 रुपए कट जाए इन लोगों के। बहरहाल, सो दैट इज फॉर योर मेजर पॉइंट्स। मैंने आई बिलीव सारे पॉइंट्स एड्रेस कर दिए हैं। डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को इसमें आ सकते हैं। एक बात बस ध्यान रख लेना कि while you are preparing for this means, last time I can see there is a question in terms of difference of infringement of trademark and passing off. There's a question relating to infringement of trademark and passing off, number one, ठीक। Secondly, there's a question on res judicata and estoppel, ये दूसरा है, ठीक। तो डिफरेंस बेस्ड जितने भी एरियाज हो उनको प्रॉपरली कवर कर लेना, क्योंकि वो आपके लिए मैक्सिमम स्कोरिंग एरियाज हो जाएंगे। वहां पे आप कॉलम बना करके, अच्छा, कॉलम में जिसका क्वेश्चन है कि क्या कॉलम प्रॉपर डब्बा बॉक्स वॉक्स बनाने की जरूरत है, नो नीड टू डू दैट, दैट्स बुलशिट, यू डोंट नीड टू डू दैट, मत करना। ये पॉइंट 1 रेस जुडिकेटा, फिर ये थोड़ा सा स्पेस, अपना इमेजिनरी स्पेस छोड़ो, पॉइंट 1 एस्टॉपल, फिर ये बीच में कोई लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, इट विल वेस्ट योर टाइम, ठीक, डोंट डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, you can write the answers in any order, I believe you are aware about that, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, बस प्रॉपरली उसको मार्क कर लेना कि कितने कितने ऑर्डर में है। डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे आ रहे हैं। नाउ एज फार एज आई कैन सी, अननेसेसरी अगर हो या अगर लगे कि अननेसेसरी हो रहा है तो क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में केस ऐड मत करना, ठीक। अगर यू आर ऑलरेडी हैविंग अ सब्सटेंस टू राइट, डू नॉट ऐड अननेसेसरी केसेस, ठीक।
अननेसेसरी केसेस को जनरली आप उन जगहों पे लिख सकते हो जहां पे आपको फैक्चुअल प्रॉब्लम दी हुई है या केस आर मैंडेटरी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर रेस्ट जस्टे पूछा जाता है तो रेस्ट जस्टे आर वर्सेस फॉस्टर पे आ सकता है, बेडिंगफील्ड पे आ सकता है, जिस पे भी आ सकता है। ठीक, हाँ, बेरेक्स प्रोवाइडेड होती है, मेंस में मिलती है। ठीक, तो फैक्चुअली मतलब उसमें प्रोविजनली आपको प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन एक चीज मैं भी नोटिस कर रहा हूं कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द डिफरेंस ऑफ 91 एंड 92 इंडियन एविडेंस एक्ट, the best evidence rule. So your elaboration should be around the best evidence rule and the entire area. Best evidence rule में you do not see many cases. You see the provision in itself is very much sufficient. So जहां provision sufficient पड़ रहा है वहां पे unnecessarily commentary डालने की जरूरत नहीं है। जहां commentary, जहां पे provision छोटा है and the entire jurisprudence is developed on a particular case, then you have to elaborate it. फिर वो आपको accordingly जाना पड़ेगा। जैसे रेस्ट जस्टे जो है, रेस्ट जस्टे अगर पूछा गया तो आपको आर वर्सेस फॉस्टर आपकी मजबूरी है, आपको डालना ही पड़ेगा। बेडिंगफील्ड आपको डालना ही पड़ेगा, ये है। हाउ मेनी डिफरेंसेस शुड वी राइट इन ईच क्वेश्चन, भवनीश पूछ रहा है। लेट मी सी, 4 to 5, 4 to 5 ऑन एन एवरेज, 4 to 5। हाँ देखो, रुक जाओ, मैं एक एक करके फिर निशा सब कुछ एड्रेस कर दे रहा हूं। लेट मी जस्ट सी, अगर कुछ भी मुझे नया दिख रहा है तो मैं यहाँ पे तुरंत रिस्पॉन्ड कर दे रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं। इंजंक्शन था, टेम्पररी, परपीचुअल। डिफरेंसेस आर जनरली 3 to 4। इट विल बी बेटर इफ यू कैन राइट अ लिटिल बिगर, वेयर केस लॉज आर नॉट टू बी साइटेड, इट्स जस्ट अबाउट अप्लाइंग। आ रहे हैं बेटा, अभी उस पे मैसेज अभी करो ही मत, रुक जाओ। Orders are to be properly quoted. ठीक है, ओके। नाउ अब एक टाइप का क्वेश्चन जो कि पेक्यूलियर टू डीजेएस है, इशू एंड डिसीजन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इशू एंड डिसीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे आई टेल यू विद एन आंसर। ओके, यहां पे एक हमारे पास आंसर है। How does this start? I'll read it out to you just so that you can recall it, you can understand. For the sake of convenience, these are the two issues involved in the case, which should be decided by the court. You can write this down, अगर लिखना चाहो लिख लो, वरना you can mug it up, इतना याद कर सकते हो। आंसर शुरू ही ऐसे हुआ है, आंसर 13, for the sake of convenience, these are the two issues involved in the case. Issue 1, whether the second suit is barred under order 2 rule 2 sub rule 3. Issue 2, whether there was a fresh and pecuniary whatever. Like I said, handwriting doesn't matter. ठीक है, like I said, handwriting doesn't matter. Cause of action, recurring cause of action, whatever it is written. ठीक है, मेरे से भी नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है, चलो इससे बात होगी तब मैं इसको बताऊंगा। And one more thing, what he has done is he has underlined the points. इसने भी पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है, पर इसने हर क्वेश्चन में हर आंसर को अंडरलाइन नहीं किया, मतलब हर एक लाइन को अंडरलाइन नहीं किया है, सिर्फ एकदम जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना उसी पे अंडरलाइनिंग की गई है। ठीक, मल्लिका पूछ रहे हैं आप ये आंसर शीट शेयर कर सकते हो, तो द आंसर इज नो। दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस मीटिंग। अगर मैं आंसर शीट शेयर कर पा रहा होता तो क्या ही समस्या थी मल्लिका, बट नाइस ट्राई, नाइस ट्राई, गुड ट्राई। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। Then I'll take your doubts, do not worry. Sentence, ठीक है। Consideration for avoiding the sentence to a convict. Like there is some question number 5. We'll have to look at that. कहाँ पे किस पेपर में होगा एक बार चेक कर लेना। Consideration for awarding sentence to a convict. Consideration number 1, the provisions of IPC chapter 2 and CRPC 413 to 435 deal with punishment and the proceeding of sentencing. 2, फिर 3, ठीक है। कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्रिमिनल टेस्ट उसका दिया है, एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस दिए हैं। यू कैन शबनम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, इट्स अ फेयर वन, इट्स एन इजी वन। आप जो भी आंसर राइटिंग करोगे, लाइक आई कैन सी अ प्रॉपर पैटर्न, पॉइंटर में लिखना, एंड योर वन पॉइंट शुड नॉट बी मोर देन हाफ ऑफ द पेज। राइट योर आंसर्स इन पॉइंटर्स, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने स्मार्टली हर एक पेज में, अगर थोड़ा भी आपको समझ में आ रहा हो, कैन यू सी दिस, दिस इज अ पैटर्न विच इज लाइक प्रोमिनेंटली फॉलोड थ्रू आउट द आंसर शीट। समझ में आ गया? थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? हाँ, थैंक गॉड। तो ये प्रोमिनेंटली यूज हुआ है। ओके,
प्रोमिनेंटली यूज हुआ है कि आंसर शीट में आंसर्स जो लिखे हुए हैं वो 3 से 4 लाइन के 5 लाइन के पैराग्राफ्स में लिखे हैं, नॉट बियॉन्ड दैट. Then again, then there are case laws. Then that's it. More or less, this is the pattern. The following issues need to be examined in this case. तो following issues पहले शुरू में ही issues frame करके फिर आगे उन्होंने पूरा decision along with that दे दिया. Issues frame किया है, issue number 1 को deal किया है. Specifically judgment writing pattern sort of. अगर आपको judgment writing pattern पता है तो you know this. You already know this. Issue number 1 फिर उसको address किया, फिर issue number 2 उसको separately address किया. That's it. Dying declaration पे based question था. पुलकुरी कोटैया केस quoted है. Yes. Following issues, 2 issues are framed. Then issue number 1 dealt accordingly. Issue number 2 dealt accordingly. Now, am I clear on this point? ये सारे points clear हो गए. ये इधर से मैंने आपको दे दिया. अब मुझे बताओ आप लोगों के क्या doubts हैं. एक एक करके hand raise करके properly पूछ लो. अनम्यूट करके पूछ लो. टाइप करके मत पूछो क्योंकि टाइप करने के लिए सबके पास हाथ है. सब लोग बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं. ओके, फेयर इनफ. समृद्धि, गो अहेड. एक एक करके चलते हैं. आई आंसर देम. और प्लीज अगर किसी का डाउट कलेक्टिवली कवर हो जाए तो प्लीज उसको दोबारा मत पूछना. आई वोंट बी एबल टू रिस्पॉन्ड. फेयर इनफ. समृद्धि, स्टार्ट. Nice, sir. Sir, I wanted to know that what should the correct routine be like कि मतलब एक दिन में क्या क्या कैसे कैसे कवर करना चाहिए, क्योंकि मोटा मोटा समझ गए कि ट्रांसलेशन करना है, प्रैक्टिस थोड़ा लीगल जजमेंट्स करना है, मतलब रिसेंट जजमेंट्स करना है, थोड़ा बेयर एक्ट वगैरह पढ़ना है, बट एग्जैक्टली व्हाट शुड, जैसे आपने प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा रूटीन बताया था, तो इफ यू कैन गाइड अस ऑन दैट दैट विल बी हेल्पफुल. ओके ओके, रूटीन चाह रहे हो? ठीक है. रूटीन सभी लोगों का रिक्वायरमेंट है क्या? है. So, adding to that, if you can also let us know कि combination of subjects क्या करने हैं हमें. सॉरी, क्या? व्हाट ऑफ So, सब्जेक्ट? combination of subjects, कौन सा अच्छा, subject किसके साथ combination करें? of subjects. Okay, 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 fair enough. Routine plus combination of subjects. Guys, देखो, to be very honest, you won't be getting much time. आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा. तो although in general मैं recommend करता कि आपको 2 subjects at a time ideally prepare करने होते हैं. But herein I'll have to recommend that you at least go with 3 subjects if it is physically possible for you. मतलब देखो, दिन में 36 घंटे वैसे भी होते हैं, क्या करोगे तुम लोग? तो गो विथ 3 सब्जेक्ट्स. ठीक है, गो विथ 3 सब्जेक्ट्स. फेयर इनफ. ओके, लेट मी जस्ट सजेस्ट यू. देखो, आई अंडरस्टैंड दैट इट इज लाइक 24 आवर थिंग. पहले मैं आपको एक सिस्टम समझा देता हूं. फॉर द नेक्स्ट 8 और 10 डेज हाउ मच, अब ये कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, व्हाट आर योर स्लीपिंग आवर्स इन टोटल एज ऑफ नाउ. काश अपन पोल क्रिएट कर पाते. 6, 7. मोहित 5 पे चल रहा है. 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 6, 7, 6. क्या कम करवाऊं भाई तुम्हारे सोने के घंटे में. हे भगवान. अंजलि इज लुकिंग डेड इनसाइड. किसी के चेहरे पे ऐसे आंख पड़ जा रही तो देख के समझ में आ रहा है कि सर बस हैं, बस चल रहे हैं. प्रकृति 7, 7, 2 to 4. रिया 2 to 4 में बेटा आप मोदी नहीं हो, इतना भी डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है. प्लीज प्लीज. 2 to 4, 6. तुषार ग्रोवर लिख रहे हैं 9+. तो पेपर क्यों दे रहा है तू? 9+, 8, 6, 6. चलो ठीक है, इनफ विद द फन एलिमेंट. Coming back to the point, you should have a sleep of, like जो भी आपका शेड्यूल है, you should at least have a sleep of 6 to 7 hours. उतना आपको रखना पड़ेगा. उससे प्लीज कम मत करना, क्योंकि I have seen students very bright getting burned out. आप बर्न आउट कर जाओगे अगर 6 घंटे से भी कम चले गए तो 6 to 7 hours की आपको स्लीप रखनी है. यू कैन कीप इट 7 hours. 7 hour आप टॉप नॉच चले जाओ. अगर ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हो तो 6.5 hours कर लो. 6 is the bottom line. उसके नीचे मत सोना, क्योंकि अगर आप उससे नीचे सो रहे हो तो या तो you are on drugs या फिर if you are not on drugs. Recently a senior just told me mains is easy than pre. Is it 100%? 100% it is easier. Prelims के comparison में mains is very easy. I'll tell this to you very honestly on this point. AK जैन की दुक्की आती है, वो मेरे भी सीनियर सजेस्ट करते हैं भाई, तो वो वैसा ही वाला हिसाब है. यू कैन देखो, यू कैन रेफर टू ऑल द दुक्कीज नाउ. अब तुम्हारे पास दुनिया जहान की जितनी दुक्की तुम खरीद सकते हो, दिस इज द टाइम, खरीद लो.
You can get AK Jain, you can get Rega Surya Rao. Pariksha Manthan won't help here. यूपी में वर्क करती है वो, डीजीएस में वर्क नहीं करेगी. So AK Jain is the best option, but your sleeping hours have to be 6 to 7, number one, and you have to do 4 things at a time, out of which 2 will be the law subjects. Now 3 will be the law subjects, and 1 would be language or general knowledge or GK. ठीक, आप उसको ऑल्टरनेट में भी कर सकते हो. लैंग्वेज कैन बी मैनेज विद जनरल नॉलेज, ऑल्टरनेटिवली भी करोगे, या 3 दिन इन वन स्ट्रेच आप लोग लैंग्वेज कर लो, 4 दिन इन वन स्ट्रेच आप जनरल नॉलेज कर लो, इट विल सफाइस. सो एक एक करके मैं बता देता हूं कि क्या क्या करना है. पिक 1 मेजर सब्जेक्ट एंड 2 माइनर्स. ओके, 1 मेजर 2 माइनर. along with that take जनरल नॉलेज फॉर 4 days एंड लैंग्वेज फॉर 3 days. ये आपका रूटीन है. ठीक, मोटा मोटा समझ में आया. अब एक और चीज समझ लेना कि 1 मेजर 2 माइनर अगर करोगे तो 1 मेजर 2 माइनर में 2 माइनर्स जल्दी खत्म होंगे. ठीक है, तो मेजर एंड वाला वो रखना जो आपका ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आईपीसी पे कमांड है तो आईपीसी से शुरू मत करना. If you have command over, let's say CPC or CRPC, do not start with that. Do not start with evidence. Start with a subject that you are finding challenging, जो तुम्हें ऑलरेडी चैलेंजिंग लग रहा है. अगर मान्या ने या किसी भी बच्चे ने क्वेश्चन पेपर शेयर कर दिया, हम लोग ग्रुप पे देख लेंगे एक बार, अगर वहां से आपको फिगर आउट हो जाता है तो यू कैन स्टार्ट विद द सब्जेक्ट विच यू आर नॉट कंफर्टेबल विद. और अगर आप डीजेएस का मेंस लिखने जा रहे हो तो आई बिलीव कि आप ऐसा कोई सब्जेक्ट होना नहीं चाहिए जिससे यू आर वेरी अनकंफर्टेबल. You'll have to test yourself. ठीक, in how many days can we expect means? यार कितना मिलता है? 30 days, 35 days मिलता है. इससे ज्यादा कहाँ मिलता है? इतना ही मिलता है ना? Around 45. Around 45 days मिलता है. So 45 बहुत ज्यादा है. I think last time 2025 मिला था after the declaration of result of the prelims. हाँ, रिजल्ट के बाद 20 ही दिन मिलता है. करेक्ट बोल रहा हाँ, है. So 20 to 20. तो the total time that you have is like 30 days. 30 days. मैक्सिमम स्ट्रेच में हम बोलना तो वो 30 दिन का ही टाइम है. ये 45 डेज में मेगा अगली वैकेंसी आ जाएगी बेटा. सर प्री हाँ. के बाद आई मीन अंजलि लिख रही है 22 से 25 दिन. हाँ, उतना ही है. दैट्स करेक्ट. देखो, ट्रस्ट मी ऑन दिस पॉइंट, यू हैव टू डेवलप अ हैबिट ऑफ राइटिंग फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ. सो छोड़ दो कि कितने दिन में हो रहा है. आपको ये सारे सब्जेक्ट्स कितने दिन में कंप्लीट करने हैं वो मैं टारगेट दे देता हूं आपको. ठीक, you have got in a total of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें से एनडीएमसी डीएमसी आप छोड़ दो, उसको उसका लोड मत लो. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 सब्जेक्ट है. ठीक, 24 सब्जेक्ट्स हैं. From tomorrow you have got 25 days to complete all of them. हो जाएगा. अब देखो, जिन लोगों को हंसी आ रही है, अजय, आयुषी, जो भी लोग हंस रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, जिनको ये लग रहा है कि हाउ द एफ वर्ड इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, लेट मी टेल यू, देयर आर माइनर सब्जेक्ट्स इन हियर. ठीक है, देयर आर माइनर सब्जेक्ट्स विच आर डूएबल. आप लोग कर सकते हो. डीवी एक्ट हो गया या एनआईए हो गया, उसमें आपको एरियाज पता है. और क्योंकि आप कॉम्बिनेशन ऑफ 1:2 में चल रहे हो, आप एक टाइम पे 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो. बात समझ में आई? आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उन मेजर सब्जेक्ट्स को आप बाद में रख के भी अगर वर्कआउट करना शुरू करोगे तो भी डेडलाइन 25 दिन की रखो. अगर डेट्स आगे बढ़ जाती हैं, आपका फायदा है. समझ रहे हो? प्लीज, आई नो आई एम बीइंग हार्श ऑन यू, बट ट्रस्ट मी, आई एम गेटिंग इक्वली हार्श ऑन माई सेल्फ for telling this to you. Please try to understand. 25 दिन का ही कैप रखो. अपना टाइम टेबल 25 दिन के हिसाब से ही बनाओ और अपने आवर्स को अकॉर्डिंगली ही डिवाइड करो. और मिनिमम डेली के 10 पेज लिखो. अब वो सब्जेक्ट पढ़ के तुरंत लिख लो, या नहीं लिख पा रहे हो तो बाद में लिख लो, लेकिन मिनिमम डेली के 10 पेज लिखने की हैबिट डाल लो. सर इसमें तो टॉपिक वाइज ही करे ना प्रिपरेशन? हाँ, ये टॉपिक वाइज चलना है. ये बेरा कवर टू कवर नहीं है. दिस इज नॉट कवर टू कवर, ये टॉपिक वाइज चल रहा है. ठीक है, सेकंड अपन लोग देख लेते. अच्छा, तो समृद्धि, भूमिका हो गया, मोर और लेस डाउट क्लियर हो गया? हाँ जी सर. सर बस मेरे को एक और था कि लास्ट ईयर का मैंने अभी पेपर खोला हुआ है लैपटॉप में, तो उसमें
एनडीएमसी डीएमसी की तो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, लिमिटेशन का भी फैक्चुअल है, ठीक है, और बाकी एक दो सब्जेक्ट्स है उनका भी फैक्चुअल ही आया है। दिल्ली रेंट कंट्रोल भी फैक्चुअल है, ठीक है। ऑप्शनल है क्या ये? आई गेस सो, बट फिर उसके साथ एनडीएमसी डीएमसी आ जाएगा अगर। मतलब क्या ऑप्शनल में क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शनल है? सर एनडीडीएमसी तो ऑप्शनल है, ठीक है, और बाकी इसका है, इसमें भी है कि मतलब आउट ऑफ 4 3 करने हैं या फिर आउट ऑफ 3 2 करने हैं, वैसे है। अच्छा, आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 4 वैसा वाला हिसाब है। हाँ जी, हाँ तो ठीक है, तो लिमिटेशन के लिए यू कैन गो फैक्चुअल, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली तो यू आर क्लियर ना। राइट सर। इसमें आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, उसका फैक्चुअल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जिसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, जिसमें सेक्शन नंबर ही नहीं पता, उसमें क्या करेंगे? या Right, sir. बेयर एक्ट, क्योंकि बेयर एक्ट अलाउड होगी तो वी कैन टेक द रिस्क, वी कैन डू हाँ जी, दैट। sir. बट देन अगेन उसमें भी रीसेंट जजमेंट्स में एक लिस्ट बना हाँ करके आपको दे sir, दूंगा। because at the end of the question it is mentioned that you have to support the answers with recent judgments only. सिंपल वही बात हो जाएगी। तो वो रीसेंट जजमेंट्स मैं कहीं से जुगाड़ता हूँ, रीसेंट जजमेंट्स आप लोग को दे दूंगा। बेयर एक्ट आपके पास होगी तो प्रोविजनली तो आप लोग को इशू नहीं आएगा, हाँ जी, लेकिन जो sir. रीसेंट जजमेंट है वो बहुत बड़ा हेडेक है, और उसमें भी अगर फैक्चुअल जा रहा है तो मैं रिकमेंड तो यही करूंगा कि एनडीएमसी और डीएमसी को लगे तो स्किप कर देना सीधे सीधे। मैं प्रोवाइड करूंगा स्टडी मटेरियल, पढ़ के भी जाना, डू दैट। लेकिन अगर स्किपेबल नेचर का लग रहा है तो डू स्किप दैट। And sir, trademarks and copyright में उसमें पूरा करना है या टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं? आपके दो ही तो हैं, कॉपीराइट ट्रेडमार्क की, टॉपिक वाइज हाँ उसको जी, निपटा लो। ठीक जैसे है। असाइनमेंट और लाइसेंसिंग लास्ट टाइम पूछा गया है क्या? यस सर, पूछा है। हाँ, असाइनमेंट लाइसेंसिंग इज वन टॉपिक, पासिंग ऑफ इज वन टॉपिक, हु इज अ ऑथर दैट इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो They have ये been कुछ asked. बेसिक सिनेमेटोग्राफी वगैरह ये सारे जो एरियाज है ना, जो कॉपीराइट की ब्रांचेस हैं सारी, वो यू हैव टू कवर इट वेल। ठीक, डॉक्ट्रिन्स जैसे शलभ बता रहा है, जितने भी डॉक्ट्रिन्स वगैरह हो गए, थ्योरम्स हो गए, वो सारे अपने को देखने ही पड़ेंगे। मतलब इन टोटो आप कान ऐसे पकड़ो, पढ़ना तो पूरा ही है, बट टॉपिक वाइज चलना उसको। आपने मान लीजिए अगर आज आपने टाइम टेबल अपना डिवाइड किया है तो कुछ मत करो, अभी इस सेशन के एंड होने के बाद पहले अपने 3 सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लो। मूव वन स्टेप एट अ टाइम। आप ऐसे मूव करोगे कि यार मैं आज से ही 15 दिन का शेड्यूल बना लूं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 3 दिन का या अगले 6 से 7 दिन का शेड्यूल बना लो, ओके। और छोटे छोटे टारगेट्स, थोड़ा सा इसको माइक्रो लेवल पे जाकर के छोटे छोटे टारगेट्स डिवाइड करो कि अगले 3 दिन में लेट्स से मुझे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और फॉर एग्जांपल एनी अदर सब्जेक्ट, लेट्स से एविडेंस, ये कंप्लीट करना है अगले 3 से 4-5 दिन में। ऐसे कवर हो गया। तो ये अगर आपको एक एक करके, हाँ एनजी बेटा रुक जा, देख रहा हूं मैं, सब दिख रहे हैं यहाँ पे। अपना सामने कोई बोर्ड लगा लो या अपने सामने कोई पेपर वेपर चिपका लो, और ये सारे मेंस के सब्जेक्ट ना डेट वाइज लिख लो सामने, और जैसे जैसे होते जाना उनको कंप्लीट टिक करते जाना। वो सुनने में थोड़ा सा फूलिश लगता है, किडिश लगता है, लेकिन ये वर्क करता है। इट एक्चुअली वर्क्स वेल फॉर द स्टूडेंट्स दैट दे एक्चुअली सी दैट ग्रोथ कि भैया हमने इतना कर लिया, फिर इतना कर लिया, फिर इतना कर लिया, फिर इतना कर लिया। सो डू दैट, वो करो प्लीज। ठीक, कैन यू प्लीज गिव ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट दैट वी शुड प्रिपेयर इन दीज 25 days? आई कैन डाई बट दैट विल ओनली बी वंस। ठीक है, उसका मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं ट्राई करता हूं। दिस इज पॉसिबल कि मैं हर टॉपिक का या हर सब्जेक्ट का एक आपको मेजर टॉपिक बता दूं, बट देन अगेन दिस इज डीजेस, आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। टॉपिक मैं बताऊंगा उससे बेटर आप बेहतर जानते हो, क्योंकि आप 130 135 अगर स्कोर कर रहे हो, यू आर वेल अवेयर अबाउट दैट। ओके, चलो So आगे। I have 1 second, sorry. It's this in continuation में, sorry. तो आप जैसे आप कह रहे हो टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो डू यू रेकमेंड कि टॉपिक वाइज इन द सेंस कि हम जैसे हमारे पास नोट्स वगैरह है वो पढ़े, और इंस्टेड वी गो फॉर लाइक डायरेक्टली हम जजमेंट्स ही पढ़े जो अभी रिसेंट वाली हैं, क्योंकि जजमेंट्स में भी दे डिस्कस द सारा का सारा टॉपिक्स तो डिस्कस होते ही हैं। टॉपिक जजमेंट खत्म, सिंपल, ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू। ठीक है, हाँ, एक एक करके अब मैं बाकी लोगों का भी। सर आंसर की वीडियो अपलोड की है आपने? आंसर की वीडियो अपलोड की है आपने? कौन से आंसर की? जबा Sir, can I say something? क्या भारत माता की जय? No, sir. So actually, I might just go 137 after the official answer key. So should I start? Fair enough. Very Yes, you nervous. should. Yes, you should. I'm very nervous because if the cutoff reaches 145, then I might just not make it. Do you look at these faces? Everybody here is nervous.
Just look at them. It's okay. It's okay. 137 is on the brink of you getting in or out, but you cannot avoid that thought unless you have the merit list in your hand. It's better you prepare for DJs. Do you have a target of MPCJ? No, sir, just the DJs. Then what all options do we have? Then we have to prepare for DJs means. Okay. But 137 is a decent score. You can be hopeful about that. All right. Fair enough. हाँ जी. Recent important cases for a subject. ये मुझे ऐसा लग रहा है I'll have to sell it because I have actually conducted a research by my team. SQN करके मैंने एक चीज research वो prepared रखा था. तो अगर मेरे लिए मुझे टेक्स्ट बुक ने अलाउ किया तो मैं वो एक पूरा सिस्टम बना करके आप लोग को बेच दूंगा. I can sell that to you. अगर पॉसिबल होगा. नो आई एम नॉट किडिंग. I'll sell it, properly sell it, क्योंकि मेरा खुद का उसमें 15-20 हजार 30 हजार रुपए लगा है. मैंने बनाया हुआ है और वो हर सब्जेक्ट का है. मतलब वो लिमिटेशन का भी है, सारे का भी है, उसमें आईपीसी टॉट्स सब कुछ है उसमें. सो आई माइट प्रोवाइड दैट, आई माइट नॉट प्रोवाइड दैट, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता. बट लेट मी जस्ट एड्रेस एक एक करके मैं डाउट्स एड्रेस कर देता हूँ. भाविक, हाँ भाविक जस्ट अ सेकंड, जल्दी जल्दी करके अपन डाउट्स प्लीज एड्रेस करते हैं. हेलो, नमस्ते सर. आवाज आ रही है सर? हाँ भाविक बता भाई. सर एक्चुअली मेरा डाउट था कि सर मेरा बेस तो क्लियर है, कंपैरेटिवली मेरा बेस क्लियर है. जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उन पे मेरा बेस क्लियर है, लेकिन मेरे को अपनी एनालिटिकल जो स्किल है क्वेश्चन को एनालाइज करने की, उस पे कॉन्फिडेंस नहीं. तो उसको कैसे मैं प्रैक्टिस करूं, क्योंकि डीजेएस कभी मेरे उसमें नहीं था टारगेट में. ठीक है कि डीजेएस के लिए प्रिपेयर करूंगा. आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर उत्तराखंड एंड यूपी. फेयर इनफ. भाविक, डू यू हैव दैट सिंगल्स ग्रीन कलर की जिसमें प्रीवियस ईयर सारे सब्जेक्ट वाइज पेपर्स दिए हुए हैं? इसमें से ना प्रोसीजरल सब्जेक्ट सबसे पहले उठाना. उनमें अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन देखें, वैसे प्रोसीजर में कम चांसेस हैं, यू विल गेट द क्वेश्चंस इन सब्सटैंटिव लॉज. तो सब्सटैंटिव लॉज उठा लेना या प्रोसीजरल उठा लेना. इनके क्वेश्चंस देखना, इनके क्वेश्चंस को एक बार एनालाइज करके रैंडमली आंसर राइट करने की कोशिश करना. इस पे अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी वीकनेस कहां पे आ रही है. सो स्टार्ट विद दैट फर्स्ट. एक बार उसको मास्टर करो, फिर देन अगेन वी कैन डिस्कस दिस पॉइंट, क्योंकि ये करना जरूरी है. इसके बिना ना अपने को समझ में नहीं आएगा. अगर हमने लेट्स से जैसे अभी इसने बताया, भूमिका ने बताया, अगर अपन डायरेक्टली डीएमसी के फैक्चुअल सिनेरियो से एड्रेस करना शुरू करेंगे जिसमें डीएमसी नहीं पता हमको, तो वी कैन नॉट एनालाइज आवरसेल्व्स, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है. लेकिन सीपीसी का या आईपीसी का या एविडेंस का अगर तू कोई फैक्चुअल क्वेश्चन उठा करके उस पे अगर आंसर करने की कोशिश करेगा तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू प्रोसेस कि मैं प्रोविजन समझ पा रहा हूँ, प्रोविजन लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ, केस मेरे को तुरंतली रिकॉल हो रहा है कि नहीं रिकॉल हो रहा है, वेदर एम आई एबल टू फ्रेम द आंसर प्रॉपर्ली एज पर डीजीएस नॉर्म्स और नॉट. अच्छा, एक चीज और, ये मैं यूट्यूब पे ले लूंगा. आई विल प्रोवाइड अ प्रॉपर सिनॉप्सिस फॉर वेरियस क्वेश्चंस, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. मतलब वो पक्का हेल्पफुल रहेगा. मैं डीजेएस का एक प्रॉपर सिनॉप्सिस हर टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको बना के दे दूंगा कि इशू बेस्ड कैसे रखना है, डिस्टिंक्शन बेस्ड कैसे रखना है, केस लॉ बेस्ड जो भी होगा वो कैसे रखना है. ये सारी चीजें मैं बता दूं. हाँ, लेंथ वाइज पेपर पे नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, वो सारी चीजें वो मैं अलग से समझा दूंगा. ठीक है भाविक, क्लियर हो गया पॉइंट? तो सर मैं जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं तो उनका पहले मतलब जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो देखूं, कांसेप्ट में देखो. टॉपिक उठाया वो सिंगल्स वाली ग्रीन वाली जो मैं बुक बता रहा हूँ, अभी ऑर्डर कर दे, वरना मुझे एड्रेस दे, मैं तेरे लिए ऑर्डर करता हूँ. ऑर्डर करके मंगवा, देख उस बुक को, उस बुक से जो तू टॉपिक पढ़ रहा है उसके फैक्चुअल क्वेश्चंस डीजेएस के या तो होंगे या डीजेएस नहीं तो किसी और के होंगे. पंजाब के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं. इफ यू हैव टू प्रैक्टिस एनी अदर स्टेट फॉर फैक्चुअल क्वेश्चंस, गो फॉर पंजाब. इवन यू कैन गो फॉर, मतलब ये सोचते नहीं है लोग, बट यू कैन गो फॉर बिहार एज वेल. लाइक बिहार हैज गॉट गुड फैक्चुअल क्वेश्चंस, सो यू कैन प्रैक्टिस फैक्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम देयर. वहां से कर ले, अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. तो टॉपिक देखा, मान ले एविडेंस देख रहे हैं, उसमें अपन ने टॉपिक देख लिया एडमिशन कन्फेशन का अपन ने एक फैक्चुअल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देख लिया, चाहे डीजे से देखा चाहे पंजाब से देखा, उससे उठा करके फिर अपन ने साइड वाइज देख लिया कि भैया अपन आंसर लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं. दैट्स इट. क्लियर? और सर अगर नहीं लिख पा रहे तो नहीं लिख पा रहे तो ट्राई इंप्रूविंग इट. कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे नहीं लिख पा रहे होंगे ना, फ्रेमिंग नहीं सोच पा रहे होंगे, ये नहीं सोच पा रहे होंगे कौन सी चीज पहले लिखें कौन सी चीज बाद में लिखें, कंक्लूजन में सोच जा रहा होगा, केस लॉ नहीं सोच पा रहे होंगे. एटलीस्ट वो समझ रहे हैं ना कि क्या, तब तक मैं तुम्हारे लिए फॉर्मेट ला दूंगा. मतलब जस्ट गिव मी 1 or 2 days, आई विल कम अप विद अ फॉर्मेट फॉर ईच आंसर ऑफ डीजेएस. वो मेरे को 1 से 2 दिन दे दो, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, एक बार तुझे फॉर्मेट मिल गया, तेरा कंटेंट माइंड में क्लियर हो गया कि मुझे ये सब लिखना है, फ्रेम है, फिट कर, आंसर लिख दे, खेल खत्म. ठीक है सर, थैंक यू. वेल डन यार. चलो नेक्स्ट किसका भाई? सर मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं. क्वेश्चन पूछ. प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है.
ठीक है सर। आपने ना एमपीसीजे के टाइम पे एक लिस्ट प्रोवाइड की थी नंबर ऑफ टॉपिक्स के लिए, सीआरपीसी सीपीसी एविडेंस के लिए। गेस पेपर था, गेस यस पेपर यस यस गेस 1 पेपर्स। और 3। हाँ हाँ हाँ। या तो वो जो टॉपिक्स दिए थे वो पहले प्रिपेयर कर लूं, जैसे सर मैंने प्री के लिए तैयारी की थी, बट जो मेंस के कुछ माइनर सब्जेक्ट्स हैं ना वो बिल्कुल भी कभी भी नहीं पढ़े हैं। एक काम तो करने अभी का, मुझे समझ गया, गेस पेपर तुरंत अभी टेलीग्राम पे डाल दे। ठीक है। वो तो वही टॉपिक्स हैं जो अभी किसी बच्चे ने पूछा था ना कि सर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, वो सारे वही टॉपिक्स हैं। तो गेस पेपर 1 और पेपर 3 का था, हाँ शायद 2 का टास्क भी था, दिए थे आपने, 2 का पता नहीं टास्क क्या था, दिए जो थे भी सर था। आपने तो 1 और 5 3 तुरंत डाल दो, 1 और 3 टेलीग्राम पे डाल दो, स्टूडेंट्स वहां से देख लेंगे। ठीक, फेयर एनफ। वो हाँ, तो दूसरा हो गया। क्वेश्चन। हाँ तो यही था। और सर एक चीज और पूछनी थी, मैंने ना ये सुना हाँ था फैक्चुअल क्वेश्चंस में जब कंक्लूजन लिखते हैं तो हमें हाँ, न्यूट्रल रहना है या फिर कुछ ऐसे? नहीं, you do not have to be neutral. If it is based on any recent judgment, you have to give the ratio of the judgment. Simple. वो लिबर्टी नहीं है अपने पास। अगर मान लो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मान ले डीएमसी का कोई मामला, या अपन कोई भी दिल्ली रेंट कंट्रोल पे कोई आंसर लिख रहे हैं और वो दिल्ली रेंट कंट्रोल का फैक्चुअल केस ऑलरेडी है और उस पे आप आंसर लिख रही हो, तो जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है वो आपको कोट करना पड़ेगा। वो भी सुनने में थोड़ा मेहनत टास्क लग रहा होगा, सुनने में तो माइंड ही ऐसे खत्म हो जा रहा है कि इतना सब कुछ करना है। कैसे होगा ये। हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है बट हो जाता है। यूल डू दैट। ठीक है सर, ओके और बताओ, थैंक सब बढ़िया? चलो। हाँ सब। यस, नेक्स्ट कोई भी यार माइक चालू करके बोल दो भाई, अभी हम ऐसे मैं नाम भी नहीं बोल पा रहा हूँ। एनीवन, Hello, गो sir. अहेड। Good evening, sir. हाँ पूजा, हेलो। Yes, हाँ sir. Pooja this side. यस पूजा प्लीज। Yes, sir. Sir, मेरा डाउट ये कंक्लूजन के रिगार्डिंग था सर। इन फैक्चुअल क्वेश्चंस जो मेरा कंक्लूजन होता है ना, जब मैं लिखती हूँ आंसर्स, तो सर मैं उसे बहुत अच्छे से कंक्लूड नहीं कर पाती। जस्ट लाइक कि जब मैं कंक्लूड करती हूँ तो मैं ये मेंशन कर देती हूँ कि ओके, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ दिस सिचुएशन एंड पूजा, द लॉज वी पूजा, डिस्कस्ड। इफ यस इट इज ओके, ये मैं जो फॉर्मेट बताऊंगा उसमें डिस्कस कर लूं बेटा? सर। ओके सर, नो प्रॉब्लम हाँ सर। हाँ, फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो फॉर्मेट ओके, डिस्कस हो जाएगा। ठीक है थैंक बच्चे, यू सर। मोस्ट वेलकम। एनीवन एल्स? Sir, just one query when you're discussing the Manya? format. Yes, Manya? sir. Sir, one query when you would be discussing the format, would you be taking the number of pages to be attempted for each question also that time? या देयर इज नो थंब रूल टू डिसाइड कि नंबर ऑफ पेजेस कितने होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन बड़ा होता है पर उस पे आपके पास लिखने के लिए सब्सटेंट कम होता है। मैं स्टैंडर्ड नंबर बता दूंगा, जैसे मैंने एमपी के टाइम पे भी स्टूडेंट को बोला था दैट 2-2.5 पेज से ज्यादा आपका 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है मतलब हाफ है तो 1 पेज मैक्सिमम। 1 पेज दैट मींस वन साइड ऑफ द पेज, दैट टू नॉट 2 पेजेस। तो ये मैंने एमपी में बताया था। But sir, in Delhi we have 10 marker, 20 marker and 30 marker. 10, 20, 30। हाँ तो फिर मेरे को यार एक बार जो मेरे पास हाँ जी, हाँ जी। आरटीआई कॉपीज है ना, उन आरटीआई कॉपीज को मैं स्टडी कर लेता हूँ, उसके बेसिस पे आई विल बी गिविंग यू अ बेटर आंसर। Right. Thank you so much, sir. मोस्ट वेलकम बेटा। नेक्स्ट, सर हाँ चक्षु। सर बस एक डाउट है जो भाविक पूछ रहे थे उसी के फर्दरेंस में, जो हमारे पास सिंगल्स की वो जो 4 वॉल्यूम्स की बुक है जिसमें जो एक्चुअली प्री के क्वेश्चंस होते हैं बट स्टार्टिंग में उसमें टॉपिक वाइज होता है। मैंने यूपी मेंस के टाइम पे आपने जो बताया था तब खरीदी थी, तो उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास एक सिंगल्स की अनसॉल्व्ड वाली बुक है, तो उससे हो जाएगा? उसमें मेंस के क्वेश्चंस हैं? हाँ मेंस के क्वेश्चंस हैं, अनसॉल्व्ड वाली है मेरे पास में सिंगल्स की दिखा। सर्विसेज की, ये वाली है। हाँ यही है, यही करनी है। बट ये अनसॉल्व्ड है सर। अनफॉल्ड तो, वो हाँ, भाविक भी चला गया, भाविक को भी यही बोला था मैंने। यही वाली बुक ना? सेम बुक है, यही बुक है। ठीक और जो 2 दुक्कियां हैं, एक वो नरेंद्र कुमार, क्या नाम है उसका, नरेंद्र सिंह, नरेश सिंह, कौन सी है वो? 2 ऑथर्स हैं। एके जैन वाली है मेरे पास में। नहीं, देयर आर 2 स्पेसिफिक सर एक शैलेश कुमार की आती है मेरे ख्याल से, शैलेश कुमार झा, शैलेंद्र कुमार झा, शैलेंद्र कुमार और एक नरेंद्र कुमार की सॉल्व आती है मेन प्रीवियस ईयर। ओके हाँ, अंजलि तू क्या बोल रही? सर शैलेंद्र मलिक। मलिक, हाँ ठीक है। I just और wanted to add one thing. You हाँ, बोल। suggested me the same book, green one, unsolved. I solved that, and after that, when I solved Shailendra Malik, mostly correct ही आ रहा था सब. So that helped a lot. The green book. Thank you so much. See guys, now you have to pay me 51 each. So 104 into 50. मेरा commission. 10% चलो यार अभी दे देंगे। So but yes, you solve that green book, आपको एक आइडिया लग जाता है
फिर शैलेंद्र मलिक देख लो, या दूसरी वो नरेंद्र नागेंद्र जो भी है ठीक है दूसरी सर। बुक। ये दोनों बुक्स कल कोई लाइव ले लूंगा मैं, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा, तो उसको आप लोग रेफर कर लोगे तो मेंस के लिए दैट वुड बी लाइक होली ग्रेल हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट वरी। नेक्स्ट, एनीवन एल्स? थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम यार। एनीवन एल्स? जल्दी अब अनम्यूट करके बोलो। सर फॉर्मेट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्या अर्पित? सर फॉर्मेट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं जरा एक दो? यार फॉर्मेट में अलग से बताऊंगा मैं अर्पित। आपको भी पॉइंट आउट कर दूं तो आप यू कैन कंसीडर इट व्हाइल एड्रेसिंग योर यूट्यूब सेशन। हाँ हाँ, बता बता बता। हाँ सर, एक आपने जैसे अभी क्वेश्चन आता है 91 92 एविडेंस एक्ट वाला, हाँ सो हाँ। इस टाइप के एक दो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इट्स मोर अबाउट कि आपको आधा तो प्रोविजन ही एड्रेस करना होता है। तो ऐसे में आई एम वरीड दैट आई डू नॉट वांट टू रिप्रोड्यूस द प्रोविजन, बट एट द सेम टाइम आई डू नॉट वांट टू स्किप एनी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोविजन। फॉर Okay. एग्जांपल 91 92 वाले में लास्ट में ये भी लिखा था प्लीज एक्सप्लेन बाय गिविंग 4 इलस्ट्रेशंस। अब अल्टीमेटली मेरे माइंड में इलस्ट्रेशंस वही हैं जो बैरक में दे रखे हैं। ठीक है। तो अब मैं वो अपने वहां पर बिल्कुल एक नए इलस्ट्रेशन बनाऊं बैठ के, पर वो भी क्या है मतलब उसमें भी मैं नेम चेंज कर दूंगा, बट मोर और लेस वो दे विल बी अराउंड दैट दोस इलस्ट्रेशंस ओनली। आपने नाम चेंज कर देना खाली बस। डू नॉट मेक न्यू। लुक लाइक ये ऐसे दो क्वेश्चन थे अपने सिविल पार्ट 2 में लास्ट ईयर। लेट्स से इफ यू हैव टू गिव 4 illustrations, अर्पित ऐसे समझ जी। ले, मान ले कि तुझे 4 illustrations देने हैं, जी, 3 बुक के दे दे, नाम चेंज कर दे, एक अपना बना ले, सिंपल। तो इट विल बी फाइन ना, मतलब इट विल बी ultimately फाइन, इट किया विल बी वही। फाइन, इट विल बी फाइन, इट विल बी ठीक टोटली है। फाइन, दिक्कत नहीं। सेकंड, हाँ सेकंड थिंग जो ये फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं अपने लास्ट के आते हैं जो, इसमें वन अप्रोच इज व्हिच यू सजेस्टेड अभी कि जैसे उसने इश्यूज फ्रेम किए थे कि देयर आर 2 इश्यूज इन दिस क्वेश्चन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सेकंड अप्रोच इज व्हिच आई हैव आल्सो सीन कि बाकी के टॉपर्स ने भी शेयर किया हुआ है। हाँ, इसमें दे राइट कि गिवन फैक्ट्स इन देयर ओन लैंग्वेज, देन यू कैन राइट एडमिटेड फैक्ट्स, ठीक देन है। यू कैन डिस्कस द रेलेवेंट लॉ एंड ठीक है। देन यू कैन कंक्लूड। ओके यार, तो दैट इन कैन बी दोनों डन। से बेटर अप्रोच कौन सी रहेगी सिविल क्रिमिनल दोनों में सेपरेटली, वो समझना है थोड़ा सा। मुझे 2 दिन का टाइम दे दे, क्योंकि हाँ, ये अब मैं फिर 4 एक बार ले लो। स्टडी कर लेता हूँ, rather than giving you an absolute answer right now, let me research on my part as well, and then I'll be in a better position to answer this. But for that time, for the time being, एक बार टेलीग्राम पे मेरे को यही सेम जो अभी तूने बोला ना, यही सेम क्वेरी टेलीग्राम पे भी पिंग कर दे, तो मैं वहां से लिफ्ट कर लूंगा, जस्ट इन केस अगर इफ आई एम फॉरगेटिंग दिस क्वेरी। ऑन तो ये पर्सनल चीज, चैट, हाँ बता। ऑन पर्सनल चैट को आपको मैसेज हाँ करना हाँ, है। DM ना @the शुभम Okay. उपाध्याय, उस पर मैसेज कर दे, ठीक है। ओके ओके, एड्रेस कर दूंगा मैं, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो, मोस्ट वेलकम यार, मोस्ट वेलकम। बताओ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हुज नेक्स्ट प्लीज। देखो क्वेरीज सोवा अगर के लिए आंसर क्या होगी तो करना है? सबके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ युक्ति। सर एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने किसी जुडिशियल सर्विस एग्जाम के लिए अपियर किया है, एंड ऑफ कोर्स मेंस भी फिर फर्स्ट टाइम ही होगा। सो आई एम नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ आइडिया कि कैसे मैं मतलब प्रिपेयर करूं, कौन सी टॉपिक्स मेजर ये वाला जो वीडियो है ना, ये वाला वीडियो ये टीम रिकॉर्ड कर रही है, ये यूट्यूब पे डाल देगी। यूट्यूब पे इसको 2x पे देख लेना अगर तूने अभी अभी ज्वाइन किया है, नंबर 1। नहीं, नंबर 2, मैं इनिशियली स्टार्टिंग से ही हूँ, जब से वीडियो स्टार्ट हुई है आपकी में। फिर बहन तुझे क्यों नहीं समझ में आया? नहीं, एक्चुअली मुझे ये चीज है कि जो मतलब जैसे जो भी आपने बताया फैक्चुअल क्वेश्चंस कैसे करने हैं, वो तो बहुत वाइड सिलेबस है, और एज एन थोड़ा फर्स्ट टाइम वाला वो नर्वसनेस है, तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे वो थोड़ा सा ना एंजाइटी सी हो रही है कि हाउ आई वुड बी एबल टू प्रिपेयर, क्योंकि सिलेबस इतना मेजर है। इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। 3 सब्जेक्ट, 1 मेजर, 2 माइनर, टॉपिक वाइज from the Baer Act, not the Baer Act, but the general commentary as well as factual questions उस पे देख ले। ये 3-4 चीजें जो मैंने बोली ना, बस इसी बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन कर ले, you will be through, ठीक है। Okay, sir. ये शुरू करने के लिए है, दिस इज जस्ट टू स्टार्ट। वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट, यू विल अंडरस्टैंड कि आपको और आगे कैसे प्रिपेयर करना है, समझ गए? Okay, sir. हाँ, मैं तुझे टरका नहीं रहा हूँ बहन, ये भी समझ, टरका नहीं रहा हूँ, ढंग से आराम से ही बता रहा हूं कि दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट समबडी वुड स्टार्ट विद। ठीक, आराम से शुरू कर, इसके बाद भी अगर कोई इशू है तो टेलीग्राम पे भैया मैसेज कर दो, या फिर अगर लगेगा तो मैं हर हफ्ते, नहीं नहीं, नो कमिटमेंट्स, नो ब्लडी कमिटमेंट, नो 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 नो, नहीं भैया, कुछ भी प्रॉमिस मत करो इन लोगों को, ठीक है। और एनी अदर डाउट्स? No comments. क्या? Sir, hello, sir. Jayati. हाय जयती, बता बता बता। Am I audible?
हाँ जी हाँ सर, एक्चुअली मुझे यही पूछना था। फर्स्ट सॉरी सर, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया ज्वाइन करने में, इनफैक्ट बहुत लेट हो गया। तो सर हाँ। पहले तो ये पूछना है सर मुझे, सर इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा मिल क्या जाएगा, यूट्यूब मिल पे? जाएगा। ओके, थैंक यू सो हाँ। मच सर। तो सेकेंडली सर मुझे ये बोलना था आपसे कि जैसे अभी एमपी भी है सर, प्रीलिम्स, एंड आई गेस आपने सब कुछ डिस्कस किया है, बट स्टिल वंस मैं एक चीज पूछना चाहूंगी सर, हाँ। जैसे जो मेंस का दिल्ली का जो मेंस है ना, इसका हाँ। जैसे बहुत फास्ट होता है, दे डोंट गिव मच टाइम। हाँ। तो जो थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट्स है जो जनरली हम नहीं हाँ। पढ़ते हैं, लाइक हाँ, डीएमसी, वो इसको सर। दो वीडियो बहन जो 7 बजे ओके लाइव लिया, एक उसको देख ले जाती। ये वाला ओके वीडियो अभी मेरी टीम ना इसको अपलोड कर देगी, रात में लगेगा ना, 1 बजे अपलोड कर देंगे, इसको देख ले प्लीज। ओके ये मैंने एड्रेस ओके कर दिया, ठीक है। ओके सर, दैट्स फाइन ओनली, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एनीबडी एल्स? ऑल डाउट्स क्लियर? सारी चीजें एड्रेस हो गई हैं? और किसी को कोई दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा? सर मेरे को पूछना था। हाँ मोहित बता। सर मैंने सर कई सर मेरे दोस्त वगैरह हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला कि फर्स्ट टाइम में डीजेस क्लियर नहीं होता है, तो सर मेरा फर्स्ट टाइम ही है सर। सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है सर मेरा, तो सर क्लियर हो सकता है अरे तो फर्स्ट वो अटेम्प्ट? तुम्हारे दोस्त नशे करते हैं क्या? डियर टीम, इसको एडिट कर देना प्लीज। क्यों फर्स्ट अटेम्प्ट? मेरे 2 स्टूडेंट तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बने हैं, एक तन्मय, सुकृति, ये लोग तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले पहली बार डीजेस लिख रहे थे। बनते मोहित, तू भी बन जाएगा भाई। सर मैंने प्री में तो सर 165 प्लस मार्क स्कोर किए हैं। किससे डर रहा है भाई? क्यों डर रहा है? ये दिस इज थिंक अबाउट इट मोहित। when you have confidence in yourself ना, when you have confidence on your concepts, do not listen to what people are saying. तो एक हर चीज का एक्सेप्शन होता है ना, लाइफ इज लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, सो यू बी दैट एक्सेप्शन। ओके सर। सर मेरी सर एक रिक्वेस्ट थी सर, जो आप चैनल पर सर जो एक सेकंड रुक जा भाई, एक सेकंड सुन ले। टेक्स्ट बुक टीम, अगर आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, ये जो पिछला भी 1-1.5 मिनट में मैंने वो मोटिवेशनल दिया ना, इसको रील पे चलाना है, ठीक है? डन। हाँ मोहित प्लीज कंटिन्यू। सर मेरा एक रिक्वेस्ट था कि जो सर आप 1 मिनट वाला जो वीडियो डालते हो ना चैनल पर टेलीग्राम में, हाँ हाँ सर वो एक वीडियो 1 मिनट का डेली डाल दिया करो सर, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है सर उससे। ठीक है, ठीक है, आई वुड डू। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। डन डन। सर एक क्वेरी थी कि सर जो आपने बोला कि डिफरेंसेस हम लोग कॉलम बेस्ड में कर सकते हैं, तो जब कॉलम बेस्ड में करेंगे तो क्या उस कॉलम में भी हमको पूरे परफेक्ट सेंटेंसेस बना के लिखने हैं? हम पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि मतलब प्रोसीजर सब्सटेंस, मतलब ऐसे करके लिख सकते हैं, पूरा हमको सेंटेंस बना के लिखना है? सेंटेंस 6 लाइन का इधर, 6 लाइन का इधर, 5 लाइन का इधर, 5 लाइन का इधर, 5 लाइन का इधर, 5 लाइन का इधर, ऐसे चल रहा है। That's it. नहीं सर, मतलब जैसे हम लोग लेफ्ट में हमने एक टॉपिक रखा, राइट में हमने दूसरा टॉपिक रखा, तो दोनों के जो हम लोग पॉइंट्स लिख रहे हैं, पॉइंट 1 लेफ्ट में, पॉइंट 1 राइट में, ऐसे ऐसे करके, तो क्या वो पूरा एकदम ग्रामेटिकली एकदम पूरा सेंटेंस वाइज लिखना है, द से लेके पूरा ऐसे करके, या एकदम बस इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर सकते हैं? देख, उसका एक चीट कोड होता है, यू कैन यूज दैट चीट कोड। इट इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस, बस इट इज करके लिख दो। द ड ड ड ड ड ड ड। एक रिदम मत पकड़ो, रिदम पकड़ने जाओगे तो हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा उससे। इट इज दिस, इट इज दैट, बस इतना इट इज करके सारे डिफरेंसेस क्लियर हो सकते हैं। ये मैंने अपने सेमेस्टर्स एग्जाम में यूज किया था, मेरे लिए तो काम करता है भाई, यूज इट। ठीक, एनी अदर डाउट, क्वेरी? जो अब तो जो लोग अच्छा बन के हैंड रेज कर रहे हैं, हैंड। हाँ भाविक बता। सर सोगा के लिए कैसे करना है? उसमें फैक्चुअल करना है या फिर सोगा मैंने कभी पढ़ा नहीं आज तक एक्चुअली। सोगा बेसिक क्वेश्चंस आते हैं यार, डायरेक्ट ही होते हैं आई बिलीव। फैक्चुअल मतलब मैंने तो नहीं देखे, बाकी प्रीवियस ईयर एक बार पेपर भेज देना। सोगा में डायरेक्ट है। डायरेक्ट है, हाँ तो फिर शॉर्ट नोट्स भी पूछ लेते हैं सर उसमें। शॉर्ट नोट्स पूछ लेते हैं, ठीक है, फेयर एनफ। सो डायरेक्ट और शॉर्ट नोट्स उस हिसाब से प्रिपेयर रखना भाविक, ठीक है? निदा, इफ यू आर रेजिंग हैंड प्लीज जस्ट टेल मी एंड लेट्स रैप अप। Sir, I wanted to know whether recorded video of the session will be available since I just saw the message. बहन तू अभी 5 मिनट पहले नहीं थी क्या? नहीं सर। हाँ रहेगा, खुश रहे, ठीक है सर टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा सर? यूट्यूब पे डालेंगे बेटा, बहुत बड़ा वीडियो है, यूट्यूब पे डल जाएगा, ठीक है? थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। और सर कट ऑफ का मतलब कितने प्रिपेयर करना? 135 प्लस पे हो तो प्रिपेयर करो तो सही रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। तेरा कितना आ रहा है? सर एक्चुअली मैंने डर में चेक नहीं किया, पर मुझे लगता है निकल
पनवेल निकल तू बहन, बाद में बात करते हैं अपन, ठीक है निधा? सर नहीं, Tension मत लेकिन ले। मेरा वैसे अच्छा गया, मतलब अरे अरे एक्यूरेसी तो अच्छी होगी। डन, you'll be able to do that, not a problem, ठीक है? आई जस्ट होप सर। अरे you'll do good. चलो, Thank you, sir. मोस्ट वेलकम गाइस। एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरीज? आई बिलीव सारी डाउट्स क्वेरीज पूरी हो चुकी हैं, ठीक है? मैं जाऊं अपनी शादीशुदा जीवन में वापस लौटूं प्लीज, ठीक? मैं ठंड में बाहर बैठा हूं। Should we start if I'm getting 130? Yes, you should. Dipanshi, University topper and cheat code GTA वाले। हाँ, exactly मान्या। Thank you so much. Bye bye. Fair enough, guys. Let's wrap up this lecture. आज कथा को समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग। बिला चाओ, जी और जीने दो। एंड व्हाट? हाँ, जय हिंद बोलते हैं सालों, शर्म करो। जय हिंद। बस ऐसे नहीं बोलते हैं, अलग तरीका होता है। जय हिंद गाइस, बाय। रैप अप। 2-3 चीजें। फॉर्मेट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, केसेस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनडीएमसी डीएमसी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कोई नोट डाउन कर लो ताकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टेलीग्राम पे डाल देना। मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट किडिंग। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टेलीग्राम पे डाल देना, जस्ट सो दैट आई कैन रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग, ठीक? फिर से, सो केसेस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनडीएमसी डीएमसी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या था तीसरा? सर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चलो वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फोर्थ है फॉर्मेट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 4 चीजें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। जो टाइम टेबल मैंने बताया उसके हिसाब से फॉलो करना शुरू कर दो प्लीज गाइस, ठीक है? आई हैव लॉट्स ऑफ होप्स एंड आई होप दैट होप गेट्स फुलफिल्ड, ओके? कितना साइलेंट एडमायरेशन है, अच्छी बात है। फॉर्मेट ऑफ एक्चुअल क्वेश्चन, सारे फॉर्मेट्स अलग अलग मत बताऊंगा, ठीक है? चलो लेट्स रैप अप। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग। बिला चाहो, कितनी बार रिपीट करूंगा? जय हिंद, बाय।